So in last class we had started that how operator is overloaded, right? तो उसका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको. That in main, if I take two variables, int a is equal to 10, b is equal to 20, so I can add these. Two variables, right? So here plus is operator, and a and b are the operands. ठीक है, ये आपके operands हैं. And then, but in case of object-oriented programming, what happens? If you have one class called complex, and you are declaring here two variables, real and imaginary. So when, like, there can be some other functions also inside this class. Now in main, if I create two complex numbers, means I create two objects, fine. If I have to add these two objects, now this cannot happen directly in main. Yes, ठीक है? This cannot happen directly because compiler को ये नहीं पता है कि ये प्लस जो है ये वाले C1 and C2 ये तो objects हैं. So how to work on these objects with this operator? तो ये जो प्लस ऑपरेटर, so ये जो प्लस ऑपरेटर है, this will work on predefined data type. ये मैंने बताया था, right? So this will be working on predefined data type. यहाँ मैंने integers लिए हैं, it can work on float also. जितनी भी आपकी data types है character, उस पर काम कर सकती है, ठीक है? But we have to define here somewhere that this functionality of plus somewhere in the class, ठीक है? तो उसको कैसे लिखना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट? That if I somewhere this operator is put in between these objects, ये C1 भी object है, तो C2 भी एक object है. So how to deal with this scenario? Fine. So what will I do? Last time also I had asked you to write one function, add नाम का function हमने उसमें लिखा था, तो मैं उसी से अभी एक बार आपको बता देती हूँ. तो एक अगर मैं क्लास कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, तो इसमें if these are the variables real and imaginary, I am taking this example. तो public में there you can have constructor also to initialize these things, to initialize the objects. C1 and C2, these are the objects. तो यहाँ if I have to add these two numbers, what will I do? I will write some add नाम का function. इसका return type मैं यहाँ पर complex दे रही हूँ. So here, if I have to call this function in main, I will write C1 because this is object. With the help of object only, with dot operator, you can call these functions. So I write here C1 add और दूसरा डेटा मैं C2 में लूँगी, right? Because you need two datas here actually for addition. और ये हम जो प्लस ले रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेटर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? फाइन. तो now because it is having some return type, so this data will be returned somewhere. So I write here, I take another object C3. Fine. So what will happen? This C2, इसमें मैं ले रही हूँ यहाँ complex, ये C ले रही हूँ as C2 you can also take. तो C2 dot real में क्या ऐड होगा? जो भी करंट ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है. यस, करंट ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे जाएगा? इम्प्लिसिटली जाता है, तो C1 का डेटा इम्प्लिसिटली जाएगा. एंड देन यू ऑलरेडी नो कि रियल प्लस C2 डॉट रियल, राइट? तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो इमेजिनरी है C2 डॉट इमेजिनरी में इसको ऐड करेंगे. एंड वेयर टू कीप दिस डेटा, सम ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न, सो यू कैन टेक अनदर सम टेम्पररी ऑब्जेक्ट. तो आप टेम्पररी ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, ये जो टेम्प डॉट रियल होगा उसमें ये सब इसमें डालेंगे एंड टेम्प डॉट इमेजिनरी में डालेंगे. एंड फाइनली यू कैन रिटर्न दिस टेम्प ऑब्जेक्ट. यस, तो ये टेम्प किस टाइप का है? कॉम्प्लेक्स टाइप का है. दैट इज वाई इट्स रिटर्न टाइप. द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स. इज इट ओके? फाइन. तो ये हमने किया था. और बाद में आप C3 डॉट डिस्प्ले ऐसे कुछ कर सकते हो. यू कैन क्रिएट सम डिस्प्ले फंक्शन हियर वेयर रियल एंड इमेजिनरी डेटा इज शोन. सी आउट कर पाओगे उसको. फाइन. अच्छा,
फिर मैंने ये बताया था कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या करना होता है, इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन ओनली. सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज काइंड ऑफ फंक्शन ओनली व्हेन वी हैव टू क्रिएट इट. तो हम क्या करते हैं, एक रिटर्न टाइप होती है. एक फंक्शन को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ फंक्शन, रिटर्न टाइप, देन वी राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, राइट, एंड देन देयर इज अ डेफिनेशन. तो यहाँ पर आप फंक्शन का कुछ भी नेम देते हैं एंड देयर कैन बी सम आर्ग्यूमेंट लिस्ट. यस, यही आपका ऐड नाम का फंक्शन भी था ऐसा. बट हाउ टू क्रिएट ऑपरेटर, हाउ टू डू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वी विल बी राइटिंग दिस कीवर्ड ऑपरेटर और फिर यहाँ पर कुछ भी सिंबल देंगे आप जिसको आपको ओवरलोड करना है. एंड देयर कैन बी few parameters also like a function, and then there can be some definition, and before this operator there can be some return type. If there is no return type then you have to write void. You already know this. Fine, ठीक है, is it okay? तो ये चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो इसकी जगह in the same example now I will be erasing this and then I will be writing here. ये तो सिर्फ ऐड नाम की जगह पे मैं अभी क्या लिख रही हूँ, ऑपरेटर, और प्लस दे रही हूँ, और साथ में मेरे पास में आर्गुमेंट जो था वो तो मेरे पास में ये है ही है, C2. फाइन, ठीक है, इज इट ओके? सो दिस इज द रिप्लेसमेंट. एंड नाउ आई डोंट हैव टू राइट दिस, देयर इज नो ऐड फंक्शन. आई विल बी राइटिंग हियर C1 डॉट ऑपरेटर, और क्या है इसका नाम, क्या है, प्लस तक, राइट, प्लस, and then you can give here C2. Now this result will be it will be returning some result. So here you can save it in C3. Fine, ठीक है, is it okay? Now ये जो चीज है, this can, because this plus is already overloaded, here you have provided the definition. So what you can write, C1 plus C2, and now the result can be put in C3, right? So इन दोनों में से आप कुछ भी इसमें चला सकते हैं, दोनों सेम काम करेंगे. ठीक है, आप समझने के लिए ऐसे C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2 ऐसे कर सकते हैं, बट कंपाइलर के लिए ये भी चलेगा बिकॉज दिस इज ओवरलोडेड, ये प्लस ऑपरेटर. फाइन, ये मैंने बताया था. इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड दिस? फाइन, चलो, ये भी कैसे काम करता है, ये जो चीज है ये भी ऐसे काम करती है दैट C1 जो पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल करेगा किसको, प्लस को. तो जो प्लस है वो क्या है, सो इट विल गो हियर, ये वाला. तो क्या है, इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ क्या है, प्लस, ये डॉट ऑपरेटर प्लस, और ये वाला जो सेकेंड आपका ऑपरेंड होता है दैट इज टेकन एज आर्ग्यूमेंट. सो इट, अगर इसको ओपन करेंगे तो यही होगा. इज इट ओके? फाइन, अच्छा, ये हो गया. इसके बाद so okay, so another thing, second point is that in the same program, now in the same program, like I have created this class and then main function. Now in the same program I can have int a is equal to 10, b is equal to 20, and then I say int c is equal to a plus b, या directly इसको c out आप करवा रहे हो, a plus b. So this also works in the same program. What does that mean? कि जो आपका जो प्लस ऑपरेटर, जो नॉर्मल आपका जो बाइनरी ऑपरेटर प्लस है, that is working on pre-defined data type, and that is also working on user-defined data type. Objects को क्या बोलते हो, क्लास को क्या बोलते हो, क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो वो इस प्रोग्राम में ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप पे तो काम करता ही है, तो यहाँ आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे भी काम करता है. सो इसका प्री डिफाइंड मीनिंग जो प्लस का है दैट डज नॉट चेंज. इफ यू ओवरलोड दिस प्लस, इट डजंट मीन कि आप उसका पुराना मीनिंग चेंज कर दोगे. इज इट ओके? फाइन, अंडरस्टूड. तो सेम प्रोग्राम में ये दोनों ऑपरेटर्स अलग अलग तरह भी काम करेंगे. दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट. आप इसको किसी प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ में यूज करेंगे तो ऐसे काम करेगा. अगर आप इसको दो ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज करेंगे तो वो ऐसे काम करेगा जो आपने यहाँ पर डेफिनेशन दी है. इज इट ओके? फाइन, ठीक है. आप मुझे ये बताइए, ये वाला ऑपरेटर ये क्या होता है, व्हाट इज दिस सिंबल? हाँ बोलो.
सी में क्या पढ़ा था इसको? बिटवाइज ऑपरेटर्स में ये वाला लेफ्ट शिफ्ट था और ये वाला राइट शिफ्ट था. बट नाउ इन C++, this you are using this symbol with C out और ये इसको C in के साथ में यूज करते हो. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ में इस ऑपरेटर को लगा रहे हो, इट इज हैविंग सम अदर मीनिंग, इट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड, फाइन. लेकिन अगर आप किसी जैसे ये आपके दो इंटीजर्स हैं A एंड B, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह काम करता है. यस और नो? अगर आप इसको C आउट क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं. यस और नो? आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम क्लासेस हैं, उनके ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं. ये सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था. फाइन, ठीक है. तो आप यू आर यूजिंग सेम ऑपरेटर, दैट इज नाउ यू आर ओवरलोडिंग दैट ऑपरेटर. फाइन, okay, so let's go through this PPT. So here it is, I will just read this once. What is operator overloading? It is enabling C++ operators to work with class objects, right? Okay, so we are using traditional operators only. हम अपने आप से कोई नए सिंबल्स, अपने आप से नए ऑपरेटर्स नहीं बना रहे हैं. We are using traditional operators only. We are just overloading. We are giving different meaning when they are used with the class के objects, right? So examples of already overloaded operators क्या है? This operator. This is both the stream insertion operator as well as bitwise left shift operator, right? ऐसे ये जो right shift operator है, this is also stream, this is I stream का extraction operator है. Fine. So compiler generates the appropriate code based on the manner in which the operator is used. अगर आप इसको किसी प्रीडिफाइंड डेटा टाइप जैसे इंट फ्लोट के साथ यूज करेंगे तो वो यहाँ लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेटर इसको समझेगा. अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ C out C in के साथ यूज करते हैं तो वो I stream O stream के लिए यूज होता है, राइट? ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज हाउ टू ओवरलोड एन ऑपरेटर. वी ऑलरेडी नो कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है. इट इज जस्ट वी हैव टू राइट अ फंक्शन. आप उसमें ऑपरेटर कुछ कीवर्ड यूज करिए एंड देन इट इज सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया है इसमें. तो आप इसमें क्या करेंगे? यू जस्ट हैव टू राइट सम, कहाँ गया ये, इसमें है. सो यू हैव टू जस्ट राइट ऑपरेटर एंड देन सिंबल ऑफ द ऑपरेटर और फिर आप इसको यूज कर सकते हो. सो यूजिंग ऑपरेटर्स, टू यूज एन ऑपरेटर ऑन अ क्लास ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी ओवरलोडेड अनलेस द असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको अभी छोड़ दो. चलो यहाँ पर आओ, रिस्ट्रिक्शंस. अब जब आप किसी सिंबल को, किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी प्रेसिडेंस भी चेंज हो जाएगी, राइट? सो प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड एंड एसोसिएटिविटी तो ये भी जो चीज है वो चेंज नहीं होगी. ये हमने सी में पढ़ा है, राइट? ऐसे होता है ना कि आप वो बॉड मास का जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो क्या प्रेसिडेंस होगी कौन सी ऑपरेटर की, राइट? और अगर सेम प्रेसिडेंस है तो फिर एसोसिएटिविटी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट? ये हमने इसको सी में पढ़ा. ओके, सो यूनरी ऑपरेटर रिमेन यूनरी, बाइनरी ऑपरेटर बाइनरी रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने उसको सब इधर आके चेंज कर दिया. ओके, सो नो न्यू ऑपरेटर्स कैन बी क्रिएटेड and no overloading operators for built-in types. It cannot change how two integers are added, otherwise it will produce a syntax error. तो जब आप वही मैंने आपको जो बताया इस एग्जांपल में कि आपका अगर जो ऐसा आप डेटा दे रहे हैं it will be adding these two values जो आपके वेरिएबल्स हैं A and B, और जब आप ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं तो जो आपने यहाँ डेफिनेशन दी है वो ऐसे काम करेगी. फाइन, ओके. So these are the operators that cannot be overloaded. हाँ बोलो. हाँ no overloading operators for built-in types. जो built-in types already pre-defined है, जो मैं word pre-defined बोल रही हूँ, तो उसमें आप उसको actually में तो देखो cannot change how the two integers are added. डायरेक्टली आप a प्लस बी जैसे ये दो इंट वेरिएबल्स हैं A एंड B, यू आर एडिंग, तो इन दोनों के लिए तो ये इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, राइट? ऑपरेंड्स अगर प्री डिफाइंड है तो वो उसका स्पेसिफिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आपने C में पढ़े हैं या C++ में दैट विल बी सेम.
बट अगर ऑब्जेक्ट्स के साथ में आप डाल रहे हैं तो आप मीनिंग चेंज कर रहे हो। सो यू कैन नॉट चेंज हाउ द टू इंटीजर्स आर एडेड। आप उसमें नहीं, मैं बताऊंगी, वो तो आगे आएगा ना। ठीक है, अब ये देखो, यू कैन नॉट चेंज हाउ टू इंटीजर्स आर एडेड, तो वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना। जब आप प्लस लगाएंगे इन दोनों इंट वेरिएबल्स में तो वो ऐड हो जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप हम इसको प्री डिफाइंड डेटा को भी हम चेंज कर देते हैं। अभी इसका कुछ नहीं, या इस लाइन के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट विल गो, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड। दीज आर द ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। So all the C++ operators can be overloaded except these operators. So you can write in your notebook. ये most important है, आपको कभी वाइवा में या उधर लैब क्विज में पूछा जा सकता है। So पहला है scope resolution operator. Why it cannot be used? Why it cannot be used in operator overloading? Already आप क्लासेस के कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ रहे हैं, राइट। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। फिर और कहाँ यूज कर देते हैं इसको, बोलिए। अगर किसी फंक्शन को बाहर आपने डिफाइन किया है, और क्या, और कहाँ सकते थे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डेटा के लिए, राइट। देन कंडीशनल ऑपरेटर को नहीं कर सकते, साइज ऑफ ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, और फिर डॉट ऑपरेटर एंड ये डॉट एंड स्टार। तो ये जो है ये हम मेंबर्स को, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। फाइन। अच्छा, तो अभी जो हमने यहाँ पर एक ये जो हमने फंक्शन लिया था, राइट, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्लास। इसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। यस और नो? नाउ you can have this function outside the class also in the global area, right? And then you can keep this function as friend of this class. Can you do that? जैसे एक नॉर्मल एक मेंबर फंक्शन है ये तो, राइट। अगर आप इसको ग्लोबल एरिया में रखते हैं तो इसका डेटा एक्सेस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। बाहर से कोई फंक्शन आपके क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करता है, कैसे करते हो? फ्रेंड फंक्शन बना के, ठीक है। और आपने इफ यू रिमेम्बर कि फ्रेंड आप बना तो देते हो, ऐसे उसको डिक्लेयर करते हो क्लास में, जैसे क्लास ए है। सो इफ दिस इज अ फंक्शन ABC, सो दिस इज अ फंक्शन ABC इन द ग्लोबल एरिया, ये आपने ग्लोबल एरिया में रखा है। नाउ हाउ इफ दिस फंक्शन हैज टू एक्सेस द डेटा ऑफ दिस क्लास, तो फ्रेंड तो आपने बना दिया, बट ऑलवेज डू यू रिमेम्बर कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक आर्गुमेंट होता है, दैट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। दैट इज व्हाई यू कैन यूज दैट इज हाउ यू विल बी एक्चुअली टेकिंग इट एज आर्गुमेंट एंड यू विल बी यूजिंग द डेटा ऑफ दिस क्लास। डू यू रिमेम्बर दिस? तो हमेशा फ्रेंड फंक्शन जब एक बनता है तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है, उसका पैरामीटर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस फंक्शन, राइट। और डायरेक्टली इसको मेन में तो क्योंकि ये ग्लोबल एरिया में पड़ा है तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। यस और नो? बोलो, वो तो पढ़ा है आपने MST में, ठीक है। तो ऑपरेटर फंक्शंस कैन बी ईदर मेंबर और नॉन मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। फाइन। एंड ऑपरेटर फंक्शंस एज मेंबर फंक्शन में क्या करोगे, जैसे मैंने दिया C1 प्लस C2, ये एग्जांपल मैंने यहाँ दी थी ना, ये देखो C1 प्लस C2। इसमें क्या होता है, अगर ये मेंबर फंक्शन है तो जो लेफ्ट वाला जो ऑपरेंड है दैट इज द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, दैट विल बी एक्चुअली कॉलिंग। दैट इज हाउ, ये देखो C1 ये तो कॉल कर रहा है इस ऑपरेटर प्लस को, यस। और अगर आपका बाइनरी ऑपरेटर है तो दूसरे डेटा को आप यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, जैसे ये वाला जो सेकेंड आपका जो डेटा रहेगा दैट विल बी टेकन एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ऑपरेटर प्लस। इज इट ओके? क्योंकि अगर ये मेंबर फंक्शन है, दैट इज हाउ इट इज सेइंग दैट लेफ्ट मोस्ट ऑपरेंड मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। लेफ्ट मोस्ट ऑपरेंड। अब देखो यहाँ पर ये कैसे यूज होता है, C1 डॉट ऑपरेटर, फिर प्लस और फिर C2। नाउ दिस प्लस दिस, ये जो मैं प्लस की बात कर रही हूँ, ये जो मैंने प्लस आपको बोला C1 प्लस C2, ये जो है प्लस, ये बाइनरी क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, राइट।
नाउ देयर आर यूनरी ऑपरेटर ऑल्सो, प्लस एंड माइनस होता है ना, होता है या नहीं बोलिए। तो उसको जब आप ओवरलोड करते हो तो क्या लिखोगे, ऑपरेटर, जैसे मैंने माइनस को ओवरलोड किया तो ये तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा ना। यूनरी मतलब वन ऑपरेंट, यस। तो इसके लिए तो आपको दूसरा ऑपरेंट चाहिए नहीं। सो हियर यू विल नॉट बी हैविंग एनी आर्ग्यूमेंट। Are you getting my point, or should I explain it in more detail? What do you say? बोलो। इसकी एक एग्जांपल है मेरे पास में। इससे पहले फिर ऐसे ही आओ कि आपके पास में पहले ये देखो, आपके पास में जो ऑपरेटर्स होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं और एक क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। इसके लिए वन ऑपरेंट चाहिए होता है, यस, ठीक है। और इसके लिए कितने ऑपरेंट्स चाहिए, 2 ऑपरेंट्स चाहिए। तो अगर मेरे पास में, अगर मेन के अंदर जैसे आप सी में करते थे, ये इंट ए है, राइट, आप इसको माइनस ए लिख सकते हो, सी आउट करवा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। सो दिस माइनस कौन सा ऑपरेटर है इन दोनों में से, बोलो, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। और प्लस प्लस ए करते थे तो ये कौन सा ऑपरेटर है, हाँ, यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसके लिए एक ऑपरेंट चाहिए। अगर मैं ये लिखती हूँ ए तो हो गया, तो बी, तो मैं यहाँ ए प्लस बी लिख रही हूँ, तो ये वाला प्लस कौन सा है, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर देखो नाउ, ये तो आपका पहले वाला काम था। अब अगर मैं क्लास के रिगार्डिंग बात करती हूँ, C1, राइट, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो इफ आई राइट माइनस C1, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस माइनस C1, बोलो। माइनस क्या है इसमें, यूनरी ऑपरेटर, राइट। अच्छा, मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स में मैंने लिखा C2 एंड C3, तो मैं लिखती हूँ C2 प्लस C3, तो ये वाला प्लस क्या है, बाइनरी। इसको लिखने के लिए आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पर एक आप डेटा लेते हो, फिर आपने इसको यहाँ पर डिफाइन किया, यस और नो, अभी किया ना, अभी लास्ट एग्जांपल में, राइट। तो मैंने इसको बोला था कि ऐसे C2 कॉल करेगा और इसको ऑपरेटर लिख सकते हो, प्लस और ब्रैकेट में क्या डालोगे, C3, यस और नो, फाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसमें क्या लिखोगे, बताओ। मैं लिखती हूँ ऑपरेटर, रिटर्न टाइप हम बाद में लिख लेंगे, ऑपरेटर माइनस है, राइट, और मैंने यहाँ कुछ और डेटा है क्या, ऑपरेंड है कोई और,